Arvind Kejriwal, in other news, along with Aam Aadmi Party, the Aam Aadmi Party chief who skipped the seventh summons issued to him by the Enforcement Directorate in connection with a money laundering case linked to the liquor policy case has also once again sparked a massive controversy. The Aam Aadmi Party has issued a statement on the same saying that the matter is still pending in the court and would be heard on the 16th of March. The Aam Aadmi Party has urged the Enforcement Directorate to wait for the court's decision instead of summoning Kejriwal repeatedly. The Aam Aadmi Party also lashed out at the centre for a bit to create pressure ahead of Lok Sabha elections. तो क्या ईडी को केंद्र सरकार को कोर्ट पे भरोसा नहीं है? कोर्ट पे भरोसा रखना चाहिए ना। वो खुद ही कोर्ट गए हैं तो कोर्ट पे भरोसा, कोर्ट के आदेश का वेट करें। वो कोर्ट जो भी आदेश देगा उसके हिसाब से कर लेंगे। कोर्ट कहेगा भी जाओ तो जाएंगे। अब कोर्ट में कार्रवाई भी चल रही है और साथ में समन पे समन भी भेजे जा रहे हैं। देखिए, ईडी ने सोच समझ के कोर्ट का रुख किया। जब ईडी खुद ही कोर्ट चली गई तो मुझे लगता है न्यायालय के फैसले का इंतजार ईडी को करना चाहिए। न्यायालय ने ईडी के जो केस है उसकी कॉग्निजेंस ली है, मुख्यमंत्री जी को नोटिस दिया, मुख्यमंत्री जी के वकील वहां पेश हुए, उन्होंने अपना जवाब दाखिल दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री जी को 16 मार्च तक का समय दिया गया। अब ईडी को इंतजार करना चाहिए कोर्ट का। Arvind Kejriwal, of course, has been saying that the matter is sub judice. The BJP has been hitting back at the Aam Aadmi Party. Arvind Kejriwal, interestingly, also slammed the BJP for arresting honest Aam Aadmi Party leaders in the past, citing the example of Manish Sisodia. केंद्र सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। उनकी गिरफ्तारी का आज 1 साल पूरा होता है। इस 1 साल के अंदर केंद्र सरकार कोर्ट में एक नए पैसे का भी सबूत पेश नहीं कर पाई और सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी तो ये बात बार बार निकल के आई, झूठा केस है। मनीष सिसोदिया जी ने, गरीबों की शिक्षा प्रणाली इतनी खराब हो गई थी, सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था। 75 साल के बाद उन्होंने गरीबों को एक उम्मीद दी थी कि उनके बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सकती है। मनीष सिसोदिया जी ने गरीबों के बच्चों को सपने देखने का अधिकार दिया था। आज 1 साल से जेल में डाला हुआ है। The Delhi Chief Minister has so far skipped all Enforcement Directorate summons, calling them illegal and politically motivated. Earlier 6 were issued on 14th February, the 2nd of February, 18 Jan, 3rd Jan, December 22nd, 2023 and also 2nd of November 2023. So far, Manish Sisodia, Satyendra Jain, Sanjay Singh have all been arrested in the same case, the Delhi liquor scam, remember, is an alleged political scandal concerning the Delhi government which paved its way through the introduction of the Delhi excise policy from 2021 to 2022. This policy brought in private firms and enterprises into the retail liquor sector. The allegations involve favors to owners and shareholders of private sectors as well. But it's not only the Liquorgate heat that the Kattar Imandar, which is the Aam Aadmi Party and how it calls itself, is facing. Remember, Times Network Super Exclusive did expose Aam Aadmi Party's khas 45 crore extravaganza as well on the Sheesh Mahal for the Chief Minister. Our channel exposed how 45 crore rupees was spent in the midst of a raging pandemic to build a mahal to house the self-proclaimed Aam Aadmi Chief Minister. अरे मैं ऐसे स्कूल बनाऊंगा दिल्ली के अंदर जिसकी दुनिया याद करेगी, पूरी दुनिया याद करेगी। इन्होंने दिल्ली के स्कूल रोकने की कोशिश करी। इतने घटिया लोग हैं ये लोग। दिल्ली के स्कूल ये चाहते हैं कि गरीबों के बच्चों को जो शिक्षा इनके बच्चों को मिलती है वैसी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए गरीबों के बच्चों को। इन्होंने दिल्ली के अस्पताल रोकने की कोशिश करी। पिछले साल इन्होंने 3 महीने के लिए, ये तो मैं बता नहीं पाता आप लोगों को, रोज में जिस तरह से मेरा दिल जानता है कैसे सरकार चला रहा हूं, एक नोबेल प्राइज मिलना चाहिए मेरे को इस बारे इसके लिए कि किस तरह से बीजेपी वालों ने और दिल्ली के एलजी ने दिल्ली के लोगों को दुखी करा और किस तरह से दिल्ली वालों का बेटा करके दिल्ली के लोगों की सारी समस्याओं का समाधान केजरीवाल। इस बात के लिए नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। पहले ये कोशिश हुई झारखंड में, वहाँ के मुख्यमंत्री से कहा गया कांग्रेस से अलग हो जाओ, फिर उनको झूठे मुकदमे में ईडी सीबीआई सबने लगकर एक निर्वाचित आदिवासी मुख्यमंत्री को, जो सबसे बड़ा परिवार माना जाता है, उसे जेल भेज दिया। अब महाराष्ट्र में उसका उल्टा है। गठबंधन में शामिल होकर उन्हें डर लग रहा था तो जिसे कहते थे चक्की पीसिंग भ्रष्टाचार के लिए मध्य प्रदेश में 3 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ही बोले थे हजारों करोड़ों का घोटालेबाज, वही अजीत पवार, वही छगन भुजबल,
वही प्रफुल्ल पटेल जिनके खिलाफ जांच चल रही थी सब शामिल हो गए हैं गठबंधन में। You just heard Arvind Kejriwal amidst all of this say, after skipping 7 summons, mind you, that he should get a Nobel Prize for running the government in the national capital despite its conflict with the centre. The BJP, of course, has trained guns at the Aam Aadmi Party chief, saying that Arvind Kejriwal deserves a Nobel Prize for playing victim card. The BJP has also alleged that Nobel Prize is not given to a thief or someone who's involved in multiple scams. We agree, we concur. Although it is called as apne muh miyan mithu, meaning doing self-praise, but we say that he should get Nobel Prize. Nobel Prize for corruption. From dawa to daru, from mohalla clinic to sharab ghotala, from sheesh mahal and bus to shiksha and kaksha, every department Mr. Kejriwal and company has looted. He should get Nobel for bhashtachar. Then he should get Nobel for Chori and Sinaso. Nobel Prize should be given for this kind of victimhood card, dramebazi also. And then he should get Nobel Prize for becoming a bhagoda. Instead of appearing before the agencies, participating in investigation, you run away, you're on the run. So hit and run and on the run. Bhagoda number 1. For this too, Mr. Kejriwal deserves Nobel Prize. नोबेल प्राइज तो चोर उचक्कों को नहीं दिया जाता और जिन्होंने जल बोर्ड के अंदर घोटाले किए हैं वो लोगों का ध्यान जल बोर्ड के घोटाले से हटाकर अपने ही जल बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ धरने पे बैठ रहे हैं। तो ये जो शातिर किस्म की राजनीति है और सोचते हैं सबको आप बार बार धोखा दे पाएंगे, वो संभव नहीं है। आप किसी व्यक्ति को एक बार धोखा दे सकते हैं, दूसरी बार धोखा दे सकते हैं, लेकिन लगातार हर बार आप धोखा नहीं दे सकते। जल बोर्ड सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के पास होता था। अब घोटाला करने के बाद और घोटाला करने के लिए लगातार उन्होंने अपने अन्य मंत्रियों को या बाकी एमएलएस को वो सौंपा। पहले बीच में वो सौरभ भारद्वाज जी के पास भी रहा, उनसे हटाकर सोमनाथ भारती को भी दिया। लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं कि इस सब के पीछे जो शातिर दिमाग काम कर रहा है वो कोई और नहीं, अरविंद केजरीवाल ही है। The JDU, remember, is now part of the NDA. The party has also come out to ask Arvind Kejriwal if he is innocent, why run away from the agency's questions? Listen in. तो फिर एजेंसीज के साथ अरविंद केजरीवाल जी को सहयोग करना चाहिए। ये हठधर्मिता है। आप कानून को ठेंगा नहीं दिखा सकते हैं, उन्हें सहयोग करना चाहिए। और बार बार का ये आरोप कि ईडी और सीबीआई जानबूझकर अपने राजनीतिक विरोधियों पर प्रहार कर रही है, मुझे लगता है इससे हवाला हट करके उन्हें अपना स्टैंड रखना चाहिए कि वो क्यों नहीं उनके खिलाफ जो आरोप लगे हैं उसका संतोषजनक जवाब दे पा रहे हैं।